ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 26 ਸਾਲਾ ਕੇਤਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਤਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੇਤਨ ਨੂੰ ਲੋਹਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਤਨ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਲੋਹਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਤਨ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਹਿੰਜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਸੀਆ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। हाँ, तो कट रचा है और कट रचने के तो 18 जून 2026 को एक जो बुढ़ी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो एक केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें उसको संशय जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं
और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी का इस पूरे मामले में क्या ताल्लुक है और सिया के उसके साथ कुछ रिश्ते वगैरह कैसे सामने आए? एकाचे संपर्कात आणि संबंधात, हाँ, इन दोनों का आपस में संबंध था जी। क्या ये पहली बार ही हुआ है? इससे पहले इस तरीके का अटेम्प्ट कोई हुआ है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी समझ में आ रहा है प्राथमिक तौर पर कि पहले कुछ बाली का प्लान था, फिर उसने पासपोर्ट फ्रॉड किया और बाद में लोहगढ़ का प्लान हुआ। वो जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहां से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था तो ताकि ये कतर बाली ना जा पाए। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुंचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसके अग्रवाल और गोयल समझ में आ रहा है कि बड़े खानदानी लोग हैं। क्या एग्जैक्टली इनकी फैमिली बैकग्राउंड है और इस पूरे मामले में अभी तक एग्जैक्टली कौन कौन से टेक्निकल एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई किया गया? देखिए, दोनों बिजनेस फैमिलीज हैं। मार्केट यार्ड पूना सिटी में जो है वहाँ पे दोनों के बिजनेस हैं और हमने अभी तक वो जो भी हमें टेक्निकल हमारे सोर्सेज हैं जिसमें हम CDR IPDR एनालिसिस करते हैं, CCTV चेक करते हैं, हमारे कुछ गोपनीय सूत्र हैं और उनके रिश्तेदारों के जवाब हैं और उनके आगे जो साक्षीदार हमें वहाँ पे जो वस्तु स्थिति दिखाई दी है, इस सब के आधार पे ये जो गुनाह है वो डिटेक्ट होके सामने